हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। 15 अगस्त 2024 को वी विल बी सेलिब्रेटिंग अनदर ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। हाउएवर द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो डॉक्टर अंबेडकर का ड्रीम था कि ना ही सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी इंडिया के अंदर इंश्योर्ड हो, क्या हम इसके करीब आ पाए हैं? एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू आंसर in the aftermath of the brutal rape and murder of a 31-year-old junior doctor in Kolkata. जहाँ पे अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, काम पे नहीं, घर पे नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं, प्राइवेट स्पेस में नहीं, तो क्या इंडिया ट्रूली फ्री है? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या इंडिया की हाफ जो सिटीजन्स की पॉपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स विमेन, क्या वो जेन्युइनली फ्रीडम एंजॉय करती हैं? अब जैसे कि हमने देखा है न्यूज़ में, खबरों में, अगस्त 9, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता के अंदर है, वहाँ के सेमिनार हॉल के अंदर डिस्कवर हुई द बॉडी ऑफ अ 31-year-old रेजिडेंट डॉक्टर, जहाँ पे पता लगा दैट द बॉडी वॉज हाफ क्लोथ एंड देयर वर ऑब्वियस साइंस ऑफ वायलेंस, राइट, जिसने सिंबलाइज किया कि किस तरह से देयर हैड बीन अ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट एंड देन मर्डर कैरीड आउट अगेंस्ट द वुमन. नाउ व्हाट मेड थिंग्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स वाज द फैक्ट दैट पहले इस पूरे इंसिडेंट को जो फैमिली ऑफ द विक्टिम है उनकी तरफ एक सुसाइड केस जो है उसके बारे में, उसको सुसाइड जो है वो बता के समझाया गया, वो बता के जो है उन्हें बोला गया. एंड द पेरेंट्स वर फोर्स्ड the torture of having to wait 3 hours before her father was allowed inside to have a look at the body. All he was allowed to do was click a picture to carry forward to his family. और उस पिक्चर से ही समझ में आ रहा था the kind of brutalization that young woman doctor had to go through. Over time, due to certain footage, information, ये निकल के आ रहा है कि संजय रॉय जो कि एक सिविक वॉलंटियर थे with the police welfare board, जिसके कारण उनके पास काफ़ी easy access था in the hospital, he was someone who has been accused of the crime and उन्हें arrest कर लिया गया है. However, in the aftermath of this incident, there has been widespread protest as well as strikes by resident doctors and junior doctors across the country. Federation of Resident Doctors Association ने एक indefinite strike का call किया था, which was called off after meeting the Union Minister for Health, Mr. Nadda, जिन्होंने उनको इंश्योर किया है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम, ये इस पे काम किया जाएगा टू प्रिवेंट एनी सच फ्यूचर इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग. However, a lot of other government hospitals, especially in the Delhi area, have refused to call up the strike and are still continuing with the same. Not just doctors, but in fact, women and other citizens across the country have again taken note of the brutal assaults and crimes जो कि औरतों के against होते जा रहे हैं देश में. Right? And again, as we talked about, regardless of whether the women are in urban areas, in rural areas, private sphere के अंदर, public sphere के अंदर, across ages, ये brutal crimes जो है ये witness किए जा रहे हैं. अब इस पूरे इंसिडेंट के चलते हुए a lot of question marks were also raised with respect to the lapses that have occurred both by the state police as well as the state government, with also accusations of people trying to cover up the crime and possibly cover up more accused. इसके चलते हुए कैलकाटा हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के सामने 6 अपील्स जो है रखी गई, including by the family of the victim. Taking note of the same, the division bench has now transferred the probe from the Kolkata police to CBI. साथ ही में बेंच ने यह भी कहा है to ensure that proper investigation is carried out, the bench will be monitoring the probe and CBI has been ordered to submit a report to the court within 3 weeks. साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, particularly with respect to the officials who were involved, including the principal of RG Kar Medical College, Professor Sandeep Ghosh, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाला एंड इंस्टेड उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया टू अ न्यू पोस्ट विद इन आवर्स ऑफ हिम टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन टू अनदर मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल.
इसके चलते हुए कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो एक लीव पे जाएं, तब तक एक थरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैरी आउट की जा सके। नाउ इम्पॉर्टेंटली इट इज़ क्रिटिकल टू रियलाइज कि कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर हमने ऐसे इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड असॉल्ट देखे हैं। व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक इवन मोर इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सक्यूजेस व्हिच आर ऑफन ऑफर्ड, राइट। दिन ब दिन जो वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, right? Despite the fact that a number of policies, a number of tweaks to the laws, a number of funds have been created by the central government and a number of other state governments, इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट जो है वो अभी तक हमने नहीं देखी है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं इन द मेडिकल कम्युनिटी इटसेल्फ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट cases with respect to sexual violence against a woman working within the medical community had come in 1973 in the famous Aruna Shanbag case, जहाँ पे Aruna Shanbag was a 25-year-old young nurse at King Edward Medical College, right? उनके अगेंस्ट जो है एक brutal sexual assault हुआ by a sweeper जो कि वहाँ पे काम करते थे। And because of the assault and strangulation जो कि उन्होंने की, she was forced into a vegetative state for nearly 42 years. In fact, इसी के चलते हुए एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने उनके लिए यूथेनेशिया की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। However, सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी विरानी को नेक्स्ट ऑफ किन नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि जो KEM कि नर्सेस का स्टाफ है जिन्होंने आफ्टर दिस इंसिडेंट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट की थी, एंड इनफैक्ट इनकी प्रोटेस्ट के कारण फॉर ऑल दीज ईयर्स Aruna Shanbag, who did not have a family who came to her rescue to take care of her, it was the nurses and the staff at the KEM hospital who banded together to take care of her for all these years जो कि वो हॉस्पिटल के अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ही नेक्स्ट ऑफ किन की तरह जो है रिकग्नाइज रखा, एंड दे रिफ्यूज्ड to have euthanasia done upon Shanbag, right, who finally passed away due to pneumonia in 2015. However, Shanbag के केस के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, while इंडिया के अंदर एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, पैसिव यूथनेशिया जो अलाउ किया गया है, that was in the aftermath of the case which was brought around by Pinky Virani in Supreme Court. इसके बाद भी 1992 के अंदर एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था अगेंस्ट बनवारी देवी, जो कि एक ग्रास रूट वर्कर थी जिनको साथिन भी बोला जाता था। एक तो विमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा था, जहाँ पे ग्रास रूट वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट वर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू रेज अवेयरनेस, राइट, पब्लिक हेल्थ को लेके, विमेन सेफ्टी को लेके, चाइल्ड हेल्थ को लेके, एज वेल एज टू प्रिवेंट सोशल इविल्स एज वेल, राइट, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज। तो इसी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए बनवारी देवी, जिनको पता लगा कि एक ऐसी चाइल्ड मैरिज ऑफ अ 9 month ओल्ड गर्ल जो है कराई जा रही है, उसमें उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की। और इसी के चलते हुए बनवारी देवी, हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट ऑफ कुम्हार्स, वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड बाय अपर कास्ट मैन, द गुज्जर मैन ऑफ हर विलेज। साथ ही साथ में इवन विद रिस्पेक्ट टू हर इंसिडेंट, जब वो अपने इंसिडेंट को पुलिस के पास लेके गई, शी वॉजंट रियली हर्ड, शी वॉज सेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी। उनका मेडिकल टेस्ट जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया, एंड फाइनली जो वजाइनल स्वॉब था दैट हैपेंड 48 hours लेटर। उसके बाद भी जो है शी हैड टू विटनेस सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट बाय हर विलेजेस, एंड इनको एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ जो है ये व्यतीत करनी पड़ी। In fact, it was in the aftermath of the Banwari Devi case that 1997 में a number of women organizations, including विशाखा ने, विशाखा करके एक प्लेटफॉर्म, एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, जहां पे उन्होंने कहा that in fact the violence and the sexual assault against Banwari Devi was a result of the workplace duties as a part of a role as Sathin जो कि वो कैरी आउट कर रही थी, जिसके अगेंस्ट जो है उनका रेप, उनका गैंग रेप जो है ये किया गया। तो इसीलिए इन्होंने ये आगे रखा दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विमेन की इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट के लिए एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंश्योरिंग दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड वायलेंस एट वर्क प्लेस। एंड इसी के चलते हुए, बिकॉज देयर वाज अ लकूना हमारे लेजिस्लेशन के अंदर,
सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी व्हाट आर नोन एज विशाखा गाइडलाइंस, जिसने पहली बार डिफाइन किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आखिरकार होती क्या है। 2012 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम वायलेंट केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो है विटनेस किया गया अगेंस्ट 22-year-old फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह, राइट, जिनको एक प्राइवेट बस के अंदर जब रात को वो एक पिक्चर देख के वापस आ रही थी, शी वॉज बीटन, गैंग रेप्ड एंड टॉर्चर्ड बाय द अक्यूज्ड। और इसी के चलते हुए नेशन वाइड प्रोटेस्ट हैपेंड अगेंस्ट द वायलेंस जो कि विमेन टाइम एंड अगेन देश के अंदर इनकाउंटर कर रही हैं। इसी के चलते हुए नॉट जस्ट वॉज अ केस रजिस्टर्ड एंड द अक्यूज, जिसके अंदर एक जुवेनाइल भी शामिल थे, राइट। सारे जो अक्यूज हैं फाइनली उन्हें 2020 में एक अक्यूज जो हैं अपेरेंटली ही एंडेड अप कमिटिंग सुइसाइड, बाकी अक्यूज जो हैं उनको फाइनली उनकी सारी अपील्स जो है रिजेक्ट कर दी गई एंड दे वर गिवन कैपिटल पनिशमेंट इन 2020। वहीं पे इसके बाद जो है 2012 में एक कमिटी सेटअप की गई विच वॉज द जस्टिस JS वर्मा कमिटी टू लुक इनटू व्हाट वाज मिसिंग विद रिस्पेक्ट टू द लॉज जो कि कंसर्न करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस इन इंडिया। एंड इसी के चलते हुए अ नंबर ऑफ चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ऑल्सो नोन एज द निर्भया एक्ट, जिसके तहत a number of new offences including acid attack, attempt to acid attack, voyeurism, stalking, इन सब को ऐड किया गया एज offences। इसी के साथ साथ जो definition of rape है उसे भी broaden किया गया given the kind of heinous crimes and violence जो कि अब witness किए जा रहे थे women के against। However, there were also a number of shortcomings जहाँ पे there was a continuous debate with the lack of inclusion of marital rape in its definition। 2013 के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुई विच वॉज द पैसेज ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, राइट, जिसे हम पॉश एक्ट भी बोलते हैं, जिसे पास किया गया टू टैकल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विशाखा गाइडलाइंस। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को ब्रॉडली डिफाइन किया गया एंड साथ ही साथ में बियॉन्ड द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फॉर्मल वर्क प्लेसेस अब विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई बोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स, राइट। ये जो 2012 के अंदर हम केस देखते हैं, इनफैक्ट 2012 में कोलकाता के अंदर भी एक मेजर केस हुआ था विच वॉज द पार्क स्ट्रीट गैंग रेप केस ऑफ Suzette Jordan, who had again come up with her identity to talk about the incident। एंड यही इशू है जो कि हम आगे भी देखते हैं। पार्क स्ट्रीट गैंग रेप केस के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी उन्होंने कैरेक्टर को लेके, अगेन टाइम को लेके इतनी बार, इफ यू सीन द BBC डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर, राइट, कंटिन्यूसली एक्सक्यूजेस आर ऑफर्ड दैट व्हाई डिड विमेन गेट आउट एट सच अ टाइम। Questions are raised with respect to the character of women, the kind of clothes they are wearing, the kind of food that they eat, the devices they are carrying, rather than putting the blame on this omnipresent societal system of patriarchy and the lack of laws जो कि women को protect कर पाए। Similarly, 2017 के अंदर हमने एक teen gang rape witness किया यूपी के अंदर उन्नाव में, जहां पे उनके फादर को wrongfully judicial custody में डाल दिया गया leading to his death, which also led to the conviction of a former BJP MLA कुलदीप सिंह सेंगार। 2020 के अंदर दोबारा एक दलित 19 साल की लड़की जो है उसका गैंग रेप किया गया हथरस में बाय अपर कास्ट मेन, जिनकी अगेन कंप्लेन को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रजिस्टर नहीं किया गया एंड गिवन द काइंड ऑफ वायलेंस दैट शी हैड सफर्ड, शी एंडेड अप लूजिंग हर लाइफ 2 days लेटर इन दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। इसके बाद जो पुलिस थी उन्होंने इन अ वेरी फोर्स्ड मैनर इनकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द फैमिली, and the family was literally pushed into a sort of house arrest like situation ताकि वो बाहर जो है बात ना कर सके। NCRB की भी जो लेटेस्ट रिलीज रिपोर्ट है ये रिवील करती है that crimes against women in India have only tended to increase, जहाँ पे अगर हम 2018 से 2022 के बीच में देखते हैं that's close to 12.9% increase। Similarly, Women Peace and Security Index of 2023, which is released by Georgetown Institute for Women Peace and Security, ये रैंक करता है इंडिया को 128 out of 177 countries in terms of women's inclusion, justice and security।
द क्वेश्चन अराइजेस कि कितने टाइम तक ये चलता रहेगा. The answer isn't just about, yes, doctors, nurses, everyone needs to be ensured protection at workplace. But more importantly, women, regardless of whether they are educated or not, whatever occupation they might be employed in, regardless of their marital status, regardless of their age, regardless of their caste, regardless of their religion, their creed, of their language, of their region, need to be ensured protection against all sorts of crime. अगर हम truly as a society आगे बढ़ना चाहते हैं एंड सही माने में जो एक आइडिया ऑफ फ्रीडम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इमेजिन किया था, उसे फुलफिल करना चाहते हैं.